In the classes, I taught you that is expenses or incomes can be classified into two categories, that is revenue in nature and capital in nature. The items which are revenue in nature are shown in the income statement, that is trading and profit and loss account, while the items which are capital in nature are shown in the balance sheet. Now, here, few of the items are given to us, few of the transactions are given to us, and we just need to identify the nature of these transactions, whether these are capital in nature or, sorry, these are revenue in nature. So, the first one we do have is expenses on whitewashing and painting of a building purchased to make it ready for use. जैसे ही ये वर्ड लिखा हुआ जाता है to make it ready for use, so any amount spent at the time of purchase of an asset, I repeat, any amount spent at the time of purchase of an asset is always added to its cost. So when the whitewash, normally whitewash and painting charges, these are considered to be revenue in nature. But where these amount have been spent to make the assets ready for use, then it will be considered as a capital expenditure. It will be added to its cost. Secondly, rupees 10,000 spent on construction platform for a new machine. जैसे ही word new machine आ जाता है, again क्या करेंगे, जो any amount spent at the time of purchase of an asset will be added to its cost, और जब asset की cost में add हो रहा है तो again इसको capital expenditure ही treat किया जाएगा. Further, repair expenses of rupees 25,000 incurred for whitewashing of factory building. Now, just see to it. यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि ये फैक्ट्री बिल्डिंग न्यूली कंस्ट्रक्टेड है, ऐसा भी नहीं लिखा है टू मेक द फैक्ट्री बिल्डिंग रेडी फॉर यूज. तो नॉर्मली मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला था, व्हाइट वॉशिंग इन नॉर्मल सिनेरियो इज कंसिडर्ड टू बी द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. सिर्फ जब इमीडिएटली एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ एन एसेट हम उसको एक्सपेंडिचर करते हैं तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाता है. सो व्हाइट वॉशिंग will be considered to be the revenue expense. Then insurance premium paid as renewal premium. आपने इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट किया, तो आपने जब इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट किया कोई एसेट आपके पास नहीं आया ऑब्वियसली, सो इट विल बी कंसिडर्ड टू बी द रेवेन्यू एक्सपेंस. देन परचेज अ न्यू कार, जैसे ही वर्ड आ जाता है न्यू एसेट परचेज करना, तो ये आपका माना जाता है कैपिटल एक्सपेंस. राइट, किसी भी पॉइंट में अगर किसी को डाउट लगता है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं. Moving further, we do have the next part in which the first item given to us is excise duty paid on purchases. And all these questions what I am solving here in the class, you have to note down these in your copies. Fine, you have to note down all these points in your copies. The first item given to us here is excise duty paid. Excise duty paid for the purchase of new machine. जैसे ही word new machine आ गया, मैंने आपको क्या बताया, any amount spent. Even this point we studied in the chapter of depreciation also. आप लोगों को याद होगा depreciation के chapter में मैंने पढ़ाया था, any amount spent at the time of purchase of an asset is added to its cost. और जब उसकी cost में add होगा, तो जैसे machine आपका capital expenditure है, तो उसके साथ में जो भी उसके cost में add हो रहा है, it may be the excise duty, it may be the installation charges, it may be the carriage, freight and cartage. Any amount spent at the time of purchase of an asset will be added to its cost, so it will be considered to be a capital expense. Further, wages paid to install a machine. Machine के installation के लिए अभी अभी मैंने बोला था installation charges will be considered to be the capital expense, because जब तक वो amount आप spend नहीं करेंगे installation charges का, machine cannot be make ready for use. It cannot be make ready for use. So obviously the amount spent at the time of purchase of asset will be added to its cost and will be considered to be the capital expenditure. While the repairs carried out on existing car पहले कभी खरीदी थी 10 years back, 5 years back or whatever, but not currently, and the repairs expenses made for that will be considered to be revenue expense. In case this transaction would be repairs carried out on second hand car, but immediate repairs made
ऑन द परचेज ऑफ सेकेंड हैंड कार, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाता। आई रिपीट, अगर सेकेंड हैंड मशीन परचेज किया है और उसका इमीडिएट रिपेयर आपने करवाया, सेकेंड हैंड कार आपने परचेज किया है, उसका इमीडिएट रिपेयर आपने करवाया, तो वो उसकी कॉस्ट में ऐड हो जाता है और फिर उसको हम कैपिटल एक्सपेंस मानते हैं। लेकिन यहाँ तो एग्जिस्टिंग कार की बात कर रहे हैं, और एग्जिस्टिंग कार के ऊपर जब रिपेयर्स का हमने कुछ अमाउंट स्पेंड किया तो उसकी कॉस्ट में ऐड नहीं होगा, उसको हम रेवेन्यू एक्सपेंस मानेंगे। नेक्स्ट आइटम, ऑफिस ब्लॉक ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग का एक ऑफिस ब्लॉक पेंटेड फॉर ₹50,000। अब आपने 50,000 के लिए पेंट करवाया या 5 लाख के लिए पेंट करवाया, अमाउंट से फर्क नहीं पड़ता है। देयर इज अ मिसकंसेप्शन, कई लोग ऐसा समझते हैं कि स्मॉल अमाउंट है तो रेवेन्यू एक्सपेंस है, बिग अमाउंट है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। मिसकंसेप्शन, इट्स अ कंप्लीट मिसकंसेप्शन, गलती से भी नहीं सोचना 50 अमाउंट हो या 5 लाख हो या 5 करोड़ हो, इट डिपेंड्स अपॉन इट्स नेचर। इसका नेचर डिपेंड करेगा किस पे, वेदर वी आर रिसीविंग एनीथिंग इन द फिजिकल फॉर्म और नॉट, वेदर वी आर अवेलिंग द बेनिफिट फॉर सिंगल अकाउंटिंग पीरियड और मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। इफ वी आर अवेलिंग, if the benefit got exhausted in only single accounting period, it will be considered to be the revenue expense, and if the benefit continues for more than one accounting period, then it will be considered to be the capital expense. So amount doesn't make any difference, छोटा हो या बड़ा, ₹1 का अमाउंट भी कैपिटल एक्सपेंडिचर में हो सकता है और 10 करोड़ रुपए का अमाउंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में हो सकता है। There is not a difference regarding that. Now, आपने रीपेंट पे एक्सपेंस किया है, न्यूली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग नहीं है ये पहले से कंस्ट्रक्ट करवाई हुई थी, रीपेंट किया है तो ये रेवेन्यू एक्सपेंस माना जाएगा। इन केस दिस पेंट वुड हैव बीन मेड, इन केस दिस पेंट वुड हैव बीन मेड ऑन अ न्यूली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग, तो हम इसे फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर मानते। The first whitewash on the newly constructed building, the paint on the newly constructed building is added to its cost, but not the repaint made every year will be considered to be capital expense. Repaint made every year will be considered to be the revenue expense. And याद है ना हम क्यों पढ़ रहे हैं revenue expense and capital expense? Because जो revenue expenses हैं वो डेबिट होंगे ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हैं वो जाएंगे बैलेंस शीट के एसेट साइड में। तो इसलिए हम इन चीजों को पढ़ रहे हैं। Because the revenue expenditures or the revenue items, I must use the word revenue items, whether it is expenditure or it may be a receipt, the revenue items are shown in the income statement while the capital items are shown in the balance sheet. Fine. And the last item here we do have the telephone expenses, obviously telephone expenses, electricity expenses, you can say traveling expenses, marketing expenses, all these comes to be the revenue in nature because their benefit got exhausted only in one accounting period. Here ends up this caution. Let's move further. We do have a few more questions of the same nature जहां ट्रेडिंग अकाउंट वगैरह बनाने की हमें जरूरत पड़ेगी, उससे हम कंटिन्यू करते हैं। राइट, किसी के माइंड में कोई डाउट हो तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं आप लोग। From the following information determine gross profit. आप लोगों को पता है कि ग्रॉस प्रॉफिट कहां से कैलकुलेट होता है, ट्रेडिंग अकाउंट से, और नेट प्रॉफिट कहां से कैलकुलेट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। इन्होंने क्या कहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डिटरमिन ग्रॉस प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। वी हैव बीन गिवन विद ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट में कहां पे आएगा, डेबिट में। फ्रेट एंड पैकिंग ये कहां पे आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में, डेबिट में। सेल्स ये जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में। गुड्स परचेज ड्यूरिंग द ईयर दैट इज कॉल्ड परचेजेस, परचेजेस कहां पे आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। क्लोजिंग स्टॉक कहां पे आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में। एंड पैकिंग एक्सपेंसेस ऑन सेल्स ये ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आइटम है, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएगा। सो 1 2 3 4 5 आइटम्स हमने आइडेंटिफाई किया, जिसमें से ओपनिंग स्टॉक, फ्रेट एंड परचेज ऑफ गुड्स ये 3 आइटम आएंगे डेबिट में, एंड सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक ये जाएगा क्रेडिट में। फाइनली जो बैलेंसिंग फिगर हमारे पास में आएगा, दैट बैलेंसिंग फिगर विल बी कंसिडर्ड to be the gross profit or the gross loss, whatever we will get. Right, now there is a correction that is required to be made here. Here it is written as at, it is a complete blunder, it's wrong, because as a heading for the trading account we write for the year ended, right? तो आपको भी वही लिखना है, for the trading account what you will write for the year ended, not as at the year ended and 31st March 2019 is the date, and it should be mentioned in the brackets. तो हेडिंग हो गया ट्रेडिंग अकाउंट, उसके नीचे हमने लिखा फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2019, देन ओपनिंग स्टॉक लिखा,
फ्रेट एंड पैकेजिंग लिखा, परचेजेस लिखा, सेल्स लिखा, क्लोजिंग स्टॉक भी लिखा, एंड फाइनली दिस 45,000 डेबिट में आया तो हमने इसको ग्रॉस प्रॉफिट माना है। अगर यही आइटम क्रेडिट साइड में आया होता तो हम इसको ग्रॉस लॉस मानते। दिस इज द बैलेंसिंग फिगर। 45,000 इज द बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर मींस total of credit minus total of debit. So this is how you can calculate the gross profit by preparing a trading account. बस आपके माइंड में ये क्लियर होना चाहिए कि कौन सी आइटम डेबिट में लिखनी है, कौन सी आइटम क्रेडिट में लिखनी है और कौन सी आइटम ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं लिखनी है। लाइक पैकिंग चार्जेस ऑन सेल्स, वो हमने नहीं लिखा, तो हमें फॉर्मेट अगर याद होगा तो ये सब दिक्कत हमें नहीं आएगी। राइट, लेट्स मूव फर्दर, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। We do have the next question as calculate closing stock from the following details. हमें क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है। हमारे पास में इंफॉर्मेशन क्या क्या है? ओपनिंग स्टॉक, कैश सेल्स। याद रखिएगा जब सेल्स की बात आती है तो हम जहां पे हम लिखते हैं ना बाय सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में, वो उसमें कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स दोनों तरीके होती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ कैश सेल्स ले लिया, ये सिर्फ क्रेडिट सेल ले लिया, नो। Purchases means cash and credit both kind of purchases. Sales means cash and credit both kinds of sales, right? Then purchase, तो यहाँ पे हमें टोटल सेल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 60,000 की कैश सेल्स है, उसमें हम प्लस कर देंगे 40,000 की क्रेडिट सेल, तो टोटल सेल कितनी हो जाएगी आपकी? तो टोटल सेल विल बी 1 लाख। परचेजेस दे रखी हमें 70,000 की और रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट दिया है। द रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज 33.33%, 1/3%। तो 33 होल 1/3% का मतलब होता है हमें इसको कैलकुलेट कर। अच्छा, ये किसके ऊपर है? कॉस्ट पे है। ये भी ध्यान देना जरूरी है कि ये जो परसेंटेज आपको दे रखा है ये किसका है, whether this 33.33% is of cost or this 33.33% is of sales. If it is 33.33, just concentrate over my words, if it is 33.33% of cost, और कॉस्ट तो हमें क्वेश्चन में दिया ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे? फिर हम सेल्स देख सकते हैं। सेल्स कितनी है बताइए? सेल्स हमें दे रखी है 1 लाख रुपीस की, राइट? 1 लाख की सेल्स दे रखी है ना, 60 + 40। और ग्रॉस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करोगे? तो हम करेंगे इस सेल्स का 25%। ये इंपॉर्टेंट चीज है समझने वाली, कि जब हमें सेल्स के ऊपर परसेंटेज नहीं दिया है बल्कि हमें परसेंटेज दिया कॉस्ट पे, तो जो कॉस्ट का 33.33% होता है, ये 33 1/3% होता है, वो कॉस्ट का, वो सेल्स का हो जाता है 25%। तो अब 1 लाख का 25% कितना होगा? सिंपल सा आपका 25,000। ठीक है, तो अब हम जल्दी से ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं और देखते हैं कि इसका क्लोजिंग स्टॉक एज अ बैलेंसिंग फिगर कैसे निकल के आएगा, राइट? तो यहाँ पे हमने ट्रेडिंग अकाउंट ना बना के डायरेक्टली इसको सॉल्व कर लिया है, तो देखिए कैसे किया है। कौन से पेज पे हमें, वेट, तो देखिए ग्रॉस प्रॉफिट तो 25,000 निकाला हमने, वो मैंने बताई थी आपको ऑलरेडी। कैसे निकालोगे? 1 लाख का 25%, क्योंकि जो भी सेल्स का दिस वन कॉस्ट का 33.33% होता है, तो वो सेल्स का 25% होता है। तो 1 लाख का 25% आप निकालेंगे, ये 25,000 आ गया। अब इसके बाद एक फॉर्मूला मैंने आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का याद करवाया है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, या उसकी भी जरूरत नहीं, चलिए उस फॉर्मूले की जरूरत नहीं, यहाँ पे डायरेक्टली आप क्या करेंगे? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये तीनों चीजें कहाँ की? डेबिट साइड की चीजें। याद आ रहा है आपको? ये भी डेबिट में आता है, ये भी डेबिट में आता है और ये भी डेबिट में आता है ट्रेडिंग अकाउंट के, राइट? और सेल्स कहाँ से है? सेल्स क्रेडिट वाला आइटम, तो उसको माइनस कर रखा है हमने। ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस और ग्रॉस प्रॉफिट, इन तीनों को तो आपस में ऐड किया क्योंकि तीनों आइटम डेबिट साइड के हैं, और जो क्रेडिट साइड वाला आइटम है टोटल सेल्स, उसको हमने उसमें से माइनस किया। फाइनली हमारे पास में वैल्यू आ गई क्लोजिंग स्टॉक की 15,000। तो ये इसमें 15,000 निकालना कोई मुश्किल नहीं था। मेन कंसंट्रेशन आपको किस पे देना था कि ग्रॉस प्रॉफिट आपको कैसे कैलकुलेट करना है, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट जो परसेंटेज दे रखा था वो परसेंटेज कॉस्ट का था और आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ा सेल्स के ऊपर, राइट? तो इस तरह से कैलकुलेट होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये जो भी क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ आपको अपनी कॉपी में कर लेना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम द ट्रांजैक्शंस गिवन बिलो। जो ऑप्शन जो आइटम्स दे रखे नीचे उसमें से हमें सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, एंड आल्सो पास द जर्नल एंट्री कहा है। तो देखिए ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में कहाँ जाता है, डेबिट साइड में। परचेजेस कहाँ जाता है, डेबिट साइड में। सेल्स रिटर्न क्या होता है, सेल्स में से लेस हो जाता है, क्रेडिट साइड में। और सेल्स कितना दे रखा है, 25,400 दे रखा है, इसमें से ये लेस हो जाएगा। सेल्स रिटर्न को हम सेल्स में से लेस करते हैं ना, सुबह हमने डिस्कस किया था, आप सबने फॉर्मेट सुनाया था मुझे। परचेज रिटर्न क्या होगा, परचेज रिटर्न परचेज में से लेस हो जाएगा, डेबिट साइड में। क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में जाएगा। कैरेज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस होता है तो ये डेबिट में जाएगा। और डेप्रिसिएशन ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएगा क्योंकि डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आइटम है, सो डेप्रिसिएशन विल नॉट बी शोन इन द ट्रेडिंग अकाउंट। बस ये जो आइटम्स मैंने आपको बताए हैं, अगर ये आपको समझ में आए हैं तो इजीली आपका ट्रेडिंग अकाउंट बन जाएगा और आप ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं हम जल्दी से। ये रहा, देखिए आप क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक लिखा हमने, परचेजेस में से परचेज रिटर्न लेस करने के बाद में जो अमाउंट आ रहा था वो आउटर कॉलम में गया। कैरेज इनवर्ड लिखा, सेल्स में से सेल्स रिटर्न लेस करने के बाद जो अमाउंट आ रहा था वो आउटर कॉलम में गया। क्लोजिंग स्टॉक हमने लिखा, एंड फाइनली वी हैव गॉट 22,900 एज अ बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर का मतलब क्रेडिट साइड का टोटल माइनस डेबिट साइड का टोटल। ये हमारे पास में ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। कोई कंफ्यूजन कोई डाउट है तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारे पास में आ रहा है इसकी जनरल एंट्रीज। तो जनरल एंट्रीज का बहुत सिंपल से, देखो जनरल एंट्री मैं बाद में शो करूंगा, पहले आप अगर इसको समझ पाए हो फॉर्मेट को तो आपकी जनरल एंट्री अपना बन जाएगी। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये सारी चीजें डेबिट में लिखी है, इनके सबके आगे 2 लिखा हुआ है, आपको दिख रहा है ना। और आपको ध्यान है कि जो जनरल एंट्री हमारी होती है तो एक पर्टिकुलर अकाउंट को हम डेबिट करते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं ऐसे XYZ अकाउंट डेबिटेड टू हम ऐसा लिखते हैं। आपको ध्यान है कोई भी जनरल एंट्री अगर आपको करनी है तो आपकी जनरल एंट्री किस तरह से होती है, पहले जो अकाउंट डेबिट करना है वो डेबिट कर दिया और बाकी फिर 2 लिख के जिन अकाउंट को क्रेडिट करना है वो क्रेडिट कर दिया। तो देखिए जो डेबिट साइड पे आपने जिन जिन के आगे 2 लिख रखा है ना, उन सबकी जनरल एंट्री क्या बनेगी, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिटेड टू। तो जनरल एंट्री क्या बनेगी, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिटेड टू ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिटेड टू कैरेज इनवर्ड। सिंपल से जनरल एंट्री बन रही है, समझ में आ रहा है। यानी कि जो डेबिट साइड पे आइटम जिनके आगे 2 ऑलरेडी लगा हुआ है ना, उनके तो आपको क्या करना है, उन सबको क्रेडिट में लिख के और उसके ऊपर डेबिट में ट्रेडिंग अकाउंट लिख देना। तो जनरल एंट्री क्या बनी, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिटेड टू ओपनिंग स्टॉक टू परचेजेस टू कैरेज इनवर्ड, एक सिंगल जनरल एंट्री। ठीक है, इसके बाद में जो चीजें बाय में लिखी हैं उनको डेबिट में ले लो। तो एंट्री क्या बन जाएगी, सेल्स अकाउंट डेबिटेड, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। अब ट्रेडिंग अकाउंट को अपन 2 लगा देंगे, सेल्स अकाउंट डेबिटेड, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो ये अगर आपको समझ में आया तो जनरल एंट्री में कभी दिक्कत होगी नहीं, कि आप फॉर्मेट बना लो पहले ट्रेडिंग अकाउंट का, उसी से आप जनरल एंट्रीज बन जाएंगे आपको देख देख के। राइट, एक बार चेक करवा देता हूँ मैं आपको सभी जनरल एंट्रीज। देखिए ट्रेडिंग अकाउंट डेबिटेड, फर्स्ट जनरल एंट्री देखो, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिटेड टू ओपनिंग स्टॉक टू परचेजेस टू कैरेज इनवर्ड टू सेल्स रिटर्न। जो सेल्स में से माइनस किया होता है ना आइटम, उसको हमने यहाँ पे लिख दिया। देन सेल्स अकाउंट डेबिटेड, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। इसको क्लोजिंग स्टॉक को भी आप सेकंड वाली एंट्री में भी ऐड कर सकते, क्योंकि डेबिट ही करना था उसको भी। राइट, इसके बाद में क्या करना है, ग्रॉस प्रॉफिट होएगा, और ग्रॉस प्रॉफिट फिर क्या हो, कहाँ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होता है। तो देखिए नेक्स्ट एंट्री आपकी क्लोजिंग स्टॉक की तो हो गई ना, तो जो ग्रॉस प्रॉफिट हमने अर्न किया उसके लिए क्या लिखेंगे हम, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और नरेशन देखो क्या लिखा है, बीइंग अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, बीइंग अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये हो गया आपकी जनरल एंट्रीज। तो आज की क्लास को मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ। किसी के माइंड में अगर कोई कंफ्यूजन कोई डाउट है तो अभी पूछ सकते हैं चैट बॉक्स में लिख के। ये रिकॉर्डेड लेक्चर अपलोड हो जाएगा तो आप उसे दोबारा से देख के भी अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं।